وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے مخاطب عزیز طلباء ہیں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے پیاری پیاری والدہ والد گرامی کو چھوڑ کر دور ایسی جگہ پر آ کے پڑے ہیں کہ جہاں انہیں کچھ نہ کچھ مل جائے اور وہاں قرآن کریم کا علم، قرآن کریم کی معرفت اسے حاصل ہو، اس کے لیے یہاں آ کے پڑھیں. عزیز بچوں، ہمارے لیے یہ بڑا قیمتی موقع ہے. ایسے وقت ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. بچے جو ہوتے ہیں وہ میں اکثر اپنے طلباء کے سامنے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں انہوں نے اگر آپ کو رکھنا ہو تو آپ کو بہت پیارے انداز میں اپنے گھر میں رکھ سکتے تھے. پیارے سے پیارا گدا دے سکتے تھے، پیارے سے پیارا کپڑا دے سکتے ہیں اور بہترین انداز میں کھانا بھی آپ کو دے سکتے ہیں. ہر چیز اپنے گھر پر رکھ کر آپ کو اچھے انداز میں رکھ سکتے تھے، لیکن ماں باپ نے اپنے آپ سے آپ کو جدا کیوں کیا؟ یہ ہمیں سمجھنا ہے. کیونکہ کس ماں کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دے، اور کس باپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دے. بعض ماں وہ ہوا کرتی ہیں کہ کھانے کا لقمہ اٹھاتی ہے تو لقمہ اٹھانے کے بعد اسے اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے، اسے اپنا لال یاد آ جاتا ہے. وہ تڑپ جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ کاش کہ میرا بچہ ہوتا تو میں میرے بچے کو پہلے کھلاتی، بعد میں کھاتی. لیکن وہ اپنا کھانا بھی قربان کر دیتی ہے، ہر چیز قربان کر کے صرف اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیجتی ہے. اس کی کچھ نہ کچھ تمنا ہے، وہ کچھ چاہتی ہے. باپ کو چاہتا ہے کہ بچے کو بننا دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے بچوں میں آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں، آپ بہت قیمتی ہیں. آپ چھوٹے ہو، ننھے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے آپ کو بھی اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی، آپ کو بھی اپنے باپ کی یاد آتی ہوگی. آپ گدے میں سر رکھ کر یاد کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے، بھنبھناتے ہوں گے اور آپ اندر اندر تڑپتے ہوں گے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ رونا تو رونا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بن کر، کچھ کر کے اپنے ماں باپ کو کچھ کر کے دکھانا چاہیں گے انشاءاللہ. جب بچہ بنتا ہے، بچہ جب کوشش کرتا ہے، آپ یاد رکھو آپ کی عمر، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں بہت چھوٹا ہوں. آپ چھوٹے نہیں ہیں. اگر آپ نے اپنے اندر دل میں تہیہ کر لیا، آپ یہ سمجھو کہ اپنے دل کے اعتبار سے بہت بڑے سپر پاور ہو. آپ اگر نیت کر لو کہ مجھے کچھ بننا ہے، آپ ہی میں سے ایسے افراد کے نام سنیں کہ جو بچپن میں انہوں نے قرآن کریم کو مکمل کر لیا تھا. کسی نے 6 سال کی، 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں قرآن کریم کو مکمل کر لیا. علم ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں حجت اللہ البالغہ اپنے والد گرامی سے انہوں نے پڑھا. اور یہ عمر بہت چھوٹی عمر ہے اور بہت بڑی کتاب ہے. آپ نہیں سمجھ پاؤ گے حجت اللہ البالغہ کون سی کتاب ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایسی باریک نکات انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے. انہوں نے اس عمر کے اندر پڑھا ہے. آپ بہت قیمتی ہو، بہت مثالی بن سکتے ہو، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ بچوں اپنے آپ کی قدر کر لینا اور یوں سمجھ لینا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے یہیں سے سیکھ کر اپنے آپ کو ایسے بنانا ہے کہ باپ کے پاس جاؤ، ماں کے پاس جاؤ اور امی ابا
देखो अम्मी अब्बू, देखो जो आप बनना देखना चाहते थे मैं वो बनकर आया हूं आज। और बहुत लोग बने हैं ऐसे ऐसे उलमा जो आपके सामने जो नजर आते हैं, बड़े बड़े मुफ्ती अहमद खानपुरी और बहुत सारे उलमा जो आप देखते हैं, इन्होंने मेहनत की है पढ़ने के जमाने में, इन्होंने अपने आप को पहचाना है और यूं समझा है, उन्होंने कोशिशें की है, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वो मकाम अता फरमाया है। जो जितना पढ़ता है, जितना मेहनत करता है, उतना आगे पहुंचता है। आप जितनी मेहनत करोगे आप उतने आगे पहुंचोगे। आपके अंदर ये नियत हो कि मेरी माँ और मेरे बाप जिन्होंने मुझे अपने आप से दूर किया, वो तड़पते और मचलते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा बेटा आज आएगा कल आएगा। जब बच्चा जाता है उससे पहले वो तड़प जाते, रोते हैं, अपने हाथों को फैलाकर अपने आगोश में उन्हें ले लेते हैं और रोते हैं। जब बच्चा घर जाता है वो तड़पते हैं और वही माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहां गया कुछ बनकर आएगा। इसलिए कितने बच्चे के माँ बाप के जब हम पर फोन आते हैं और कहते हैं कि हजरत हम बनना देखना चाहते हैं, ये आंखें हो सकता है कि हमारे चेहरों पर झुर्रियां तारी हो जाए, बदन के आज़ा ढल जाए, लेकिन वक्त वो आएगा कि मेरा बच्चा कुछ बनकर आएगा और कौमों के अंदर जब खिदमत करेगा, कौमों के अंदर जब काम करेगा, कौमों के अंदर जब वो खिदमतें करेगा, इल्म की मोहताज जिस तरह हालात हैं, जिस तरह मसाइल हैं, जिस तरह परेशानी है, और परेशानियों के अंदर हालात के अंदर हमारा ये बच्चा कौम का सही माने में रहबर बनेगा और कौम के अंदर सही माने में खिदमत करेगा, तो बहुत खुशी होगी। वो दिल से ये कहती है और फोन करके बताती है, बेटे मैं ऐसे वक्त में आपके बच्चों में बहुत से बच्चे वो हैं कि जिनके आंखों में आंसू हैं, ये बात बताते हैं कि इनका दिल आज तड़प चुका है और ये समझते हैं कि हमें कुछ बनना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिन बच्चों के दिल में दाढ़ियां पैदा हुआ है, अल्लाह इन्हें कबूल फरमा ले, अल्लाह इन्हें नेक और मुत्तकी और परहेजगार बना दे, इन्हें आशिक रसूल और दीवाने रसूल बना दे। माँ बाप जो बनना देखना चाहते हैं, अल्लाह इन बच्चों को बना दीजिए। अल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये बच्चे बेचारे अपने आंखों से आंसू बहाकर ये सोचते हैं कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। बच्चों आपका ये जो आंखों के आंसू बहे हैं ना, इनकी कदर कर लेना और नियत कर लेना कि इंशाअल्लाह हम कुछ बनकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप नियत करो इंशाअल्लाह, और आप सुपर पावर हो, आप भी बहुत काबिल हो, आप भी अगर बनना देखना चाहते हो, याद रखो कि कोशिश करो, मेहनत करो, इंशाअल्लाह आप बहुत ताकतवर बन जाओगे इंशाअल्लाह। एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको कबूल फरमाएगा। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह आपको नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, मिसाली बनाए, कौम के सामने आप मिसाल बन के खड़े हो। अल्लाह आपको नेक, मुत्तकी और परहेजगार बनाए, इल्म का सही माने में खादिम बनाए, आलिम दीन बनाए, मुजाहिद बनाए और फकीह बनाए, मुहद्दिस बनाए, कौम का सही माने में रहबर बनाए। अल्लाह कबूल फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं मौलाना अब्दुल कयूम साहब दावत बरकात व मदद वाली जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे, मैं इस काबिल भी नहीं था, मुझे इन्होंने बिठा दिया, वरना हजरत ही काफी थे, उन्हीं की बात असल सुननी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे बिठा दिया। बस ये है कि जो बात कही है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसे कबूल फरमा ले और हमारे लिए निजात का जरिया बनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बियल अलीय्यिल वहाब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिरुन मा तशाअ मा यक़ूल। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े खतावार हैं, कहाँ जाए, किधर जाए, किससे कहे, कौन हमारा है। मौला, इन बच्चों में कोई बच्चा वो भी तो होगा जिसकी माँ दुनिया में नहीं होगी, इन बच्चों में कोई बच्चा वो भी होगा जिसका बाप दुनिया में नहीं होगा। जब बच्चों के सामने माँ की इज्जत, माँ के एहतराम के बारे में बताया जाता तो माँ 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 उस बच्चा वो माँ के लिए तड़प जाता है, रो पड़ता है। एक मरतबा मैं अपने बच्चों के दरमियान माँ की मोहब्बत के बारे में बातें कर रहा था, एक बच्चा सा रो पड़ा, कहने लगा मौलाना मेरी माँ होती तो मैं माँ के कदमों को धोकर उसका पानी पी लेता। अल्लाह अल्लाह, इन बच्चों में वो बच्चा भी तो होगा। मौला, जब छुट्टी के औकात होते होंगे, छुट्टी के औकात में
सारे बच्चे घर जाने के लिए खुशियां मनाते होंगे, वो बच्चा बेचारा अकेले बैठकर ज़ारों कतार रोता होगा कि मैं घर जाऊंगा मुझे मेरी माँ नजर नहीं आएगी, मैं घर जाऊंगा मुझे मेरा बाप नजर नहीं आएगा। मौला इन बच्चों को बच्चा होगा, अल्लाह उस बच्चे की खातिर हम अपने लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें भी कबूल फरमा ले और इन बच्चों को भी नेक बना दे, मुत्तकी और परहेजगार बना दे, सुन्नत शरीयत का पाबंद बना दे, मुत्तकी बना दे, आलिम दीन बना दे। इनके ज़हानत को खोल दीजिए, इनकी फिरासत को खोल दीजिए, फहम हिकमत अता फरमा, या अल्लाह तदब्बुरी अता फरमा, शऊर अता फरमा, ज़हनियत अता फरमा, या अल्लाह राहें खोल दीजिए, ज़हानत खोल दीजिए, दूर को देखकर पहचानने वाला बना दीजिए, सही शऊर अता फरमा दीजिए, अल्लाह फर्दों को देखकर पहचानने वाला बना दीजिए, अपनों को भी देखकर पहचानने वाला बना दीजिए, दूसरों को भी देखकर पहचानने वाला बना दीजिए, या अल्लाह अपनों में और गैरों में फर्क करने वाला बना दीजिए, अल्लाह उन्हें सही शऊर अता फरमा दीजिए, वो जाहिद बना, या अल्लाह इन्हें अलमबरदार बना, और या अल्लाह इन्हें कायद बना, या अल्लाह दीन का दाई बना, दीन का शहदाई बना, या अल्लाह मुहद्दिस बना, इन्हें फकीह बना, अल्लाह इन्हें सही माने में काम का बना दीजिए। अल्लाह ये आते हैं, इन्होंने अपने आप को हमारे करीब हमारे कदमों में लाके डालते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे लिए ये लोग मेहनत करें, लेकिन मौला हम इनके लिए मेहनत नहीं कर पाते हैं, इनको सही माने में जिस तरह बनाना चाहिए नहीं बना पाते हैं। अल्लाह 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 हमें इनके लिए मेहनत करने वाला बना दीजिए। ये बच्चे बड़े कीमती हैं मौला, ये बच्चे बड़े कीमती हैं मौला। कल क़यामत के दिन इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा, हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। हम तो गीबतों में पड़े रहे, हम तो चुगलियों में पड़े रहे, हम तो हसद में पड़े रहे, हम तो रियाकारी में पड़े रहे, हम तो लोगों को धोखा देने में पड़े रहे, हम तो दगाबाजी करने में पड़े रहे, लोगों को झूठ बोलकर काम करने के पीछे पड़े रहे। इन बच्चों का हमने ख्याल नहीं रखा, हमें तो इन्हें आशिक रसूल बनाना चाहिए था, हमें इन्हें दिनाने रसूल बनाना चाहिए था। माँ बाप को इस तरह बनाकर जिस तरह या अल्लाह जिस तरह या अल्लाह या अल्लाह जिस तरह या अल्लाह 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 जिस तरह उलमा सुलहाने बुजुर्गान ने दीन में मेहनत करके अपने बच्चों को करके बनाकर भेजा था, हमें इस तरह मेहनत करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए हैं। अल्लाह हमें सही कदर करने की तौफीक अता फरमा। बाज़ी बस्तामी के पीछे उनके उस्ताद ने जिस तरह मेहनत की थी, अल्लाह हमें इस तरह मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। इन बच्चों को कबूल फरमा लीजिए, यहाँ के असातिज़ा को कबूल फरमा लीजिए, मेहनत करने वालों को कबूल फरमा लीजिए, इस इदारे को तरक्की अता फरमा, अल्लाह कामयाबी अता फरमा। आप तरक्की अता करना चाहिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मौला। अल्लाह आप इसे बुलंदी तक पहुंचा दीजिए, अल्लाह इसे बुलंदी तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह अल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप तो कहते बंदा मांगो मैं देने वाला हूँ, आप चाहो मैं अता करने वाला हूँ, आप किसी को रायगा नहीं जाने देते मौला। इस जमीन पर बंदा मांगता है, अपने बाप को बहुत पसंद आता है, आप करीब आ जाते हैं, आप तो कहते मैं शहर से ज्यादा करीब हो जाता हूँ। अल्लाह आप तो करीब हो गए ना मौला, हम आपसे मांगते कि इस इदारे को तरक्की अता फरमा दे मौला। आप जरूर तरक्की दोगे मौला, आपसे हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं। अल्लाह हमारी उम्मीद को ज़ाहिर न जाने देना, अल्लाह कबूल फरमा ले, इस इदारे को तरक्की अता फरमा, इस इदारे को बुलंदी अता फरमा, कामयाबी अता फरमा, सुन्नत शरीयत पर लेकर चलने वाला बना दीजिए, सुन्नत शरीयत के मुताबिक लेकर काम करने वाला